اور ان کی وقعات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کیسے تھے, ہمارے ماں باپ ہمارے لیے یعنی کیا تھے دنیا میں. یعنی ہمارے ماں باپ ہمارے لیے یہ ہوا کرتے ہیں کہ یعنی اگرچہ بچہ جوان ہو جائے, شادی اور نکاح والا ہو جائے, لیکن جب بچہ کہیں باہر نکلتا ہے تو ماں کی ممتا تڑپنے لگتی ہے اور ماں کی آنچل اٹھ جاتی ہے دعاؤں کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہے, مولا میرا لخت جگر دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہے, دنیا کے کسی کونے میں رہے, لیکن اے اللہ میرے بچے کو عافیت کے ساتھ رکھنا, صحیح سلامت رکھنا. اے اللہ میرا بچہ پھولے اور پھلے. یہ ماں کی آنچل سے دعائیں نکلا کرتی ہے. تو پھر بچہ جب ماں اپنے صدق دل سے بچے کے تعلق سے دعا دیتی ہے, اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے, تو بچہ اور اولاد کسی بھی دنیا کے گوشے اور کونے میں رہے تو ماں کی دعا کی وجہ سے بچہ صحیح سلامت اور خیر و عافیت کے ساتھ ہوا کرتا ہے. لہذا ماں باپ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے, اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے. لہذا ماں باپ دنیا میں ہوں تو ان کی عزت, ان کو راضی کر لیا کرو, اس لیے کہ ان کے جانے کے بعد تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیا تھے, ان کے مرتبے ہمارے لیے کیا تھے, ان کا سایہ ہمارے سر پہ کیسا تھا. لیکن آج ماحول کیا ہے, آج کے تو نوجوان وہ اپنے ماں باپ کے احسان کو بھول جاتے کہ جس ماں باپ نے اپنے اولاد کو, اپنے بچے کو ان کی بچپن میں اس نیت سے پالا تھا کہ میری اولاد ہے, یہ میرے بچے ہیں, میرے بوڑھے ہونے کے بعد جب میں ایک لوٹا پانی لینے کے لائق نہیں رہ جاؤں گا تو میرا بچہ مجھے ایک لوٹا ایک جگ پانی دے گا, جب میں چلنے کے لائق نہیں رہ جاؤں گا تو میرا بیٹا میری قرآن مڈوں کو پکڑ کر چلائے گا. یعنی جب میں کسی کام کا نہیں رہ جاؤں گا تو میرا بچہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. یہ ماں باپ اس لیے سے اپنے اولاد کو پالتے ہیں, لیکن وہی بچے اپنے ماں باپ کے سارے احسانات کو بھلا دیتے ہیں, اپنے ماں باپ کے سارے احسان کو بھول جاتے ہیں. جب ان کے والدین ان کا نکاح, ان کی شادی کر دیتے ہیں تو 2-4 سال کی محبت میں اپنے 20 سال کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں. یعنی نکاح ہونے کے بعد جب بیوی گھر میں آتی ہے ماں باپ کے خلاف ورگلانے لگتی ہے, ماں باپ کے خلاف بھڑکانے لگتی ہے, اور یہ نادان نوجوان لوٹے, یہ نادان یعنی نوجوان اولاد یعنی بیوی کے بہکاوے میں آ کر ماں باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں, یا پھر بٹوارے کی بات کرتے ہیں یا ماں باپ سے جدا ہونے کی بات کرتے ہیں. اے لوگوں یاد رکھو, ارے وہ تمہارے اوپر ماں کا احسان ہے کہ تمہاری ماں نے اپنے پیٹ میں تجھے 9 مہینہ رکھا ہے, تمہارے پخانہ پیشاب میں خود کو سوئی ہے, لیکن تجھے سوکھی جگہ پہ سلایا ہے. جب تو چلنا نہیں جانتا تھا تو تیرے باپ نے تیری انگلیوں کو پکڑ کر چلنا سکھایا ہے. جب تو بولنا نہیں جانتا تھا تو تیری ماں نے تجھے بولنا سکھایا ہے. نہ جانے تیری بال کے یعنی تجھے پالنے کے لیے تیرے والدین کی کتنی پریشانیاں اٹھائی ہے. لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ یعنی کہ اولاد جوان ہونے کے بعد فیملی لے کر اپنے ماں باپ کو اپنی فیملی سے جدا کر دیتے. اے نادان, کیا تو بھول گیا کہ تیرے ماں باپ دنیا میں تھے تو آیا, ورنہ اگر تیرے ماں باپ نہ ہوتے تو نہ آتا, اور جب تو نہ آتا تو تیری فیملی پیدا نہیں ہوتی. اگر تیرے پاس تیری اولاد ہے یا تیرے پاس تیری فیملی ہے, یہ سب تیرے ماں باپ کی برکت ہے, یہ سب تیرے ماں باپ کا دین ہے کہ تیرے ماں باپ نے تجھے پالا, تیری شادی اور بیوہ تیرا نکاح کیا, اس کے بعد تو نے اپنی فیملی کو رچایا ہے اور فیملی کو پایا تو اپنے ماں باپ کو اپنی فیملی سے الگ کر رہا ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں یاد رکھو, ارے ماں کی ذات تو وہ ذات ہوا کرتی ہے, باپ کی ذات تو وہ ذات ہوا کرتی ہے. یعنی اللہ نے اولاد کے لیے باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے, اور ماں کے قدموں میں اللہ نے اولاد کے لیے جنت رکھی ہے. اگر اولاد اپنے ماں کے قدم کو چومے تو گویا کی جنت کی دیواروں کو چوم رہے ہیں. اگر اولاد اپنے باپ کے پیشانی کو چوم لے تو گویا کی جنت کے دروازوں کو چوم رہے ہیں. لیکن آج کے نوجوان تو کسی پیر کا ہاتھ چوم لیں گے, کسی مولانا کا ہاتھ چوم لیں گے, لیکن ماں باپ کے ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا اے لوگوں, اگر تمہیں نبی پاک کو راضی کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. اگر تمہارے ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو تم سے نبی پاک راضی ہو جائیں گے, تو تم سے رسول اللہ راضی ہو جائیں گے, تو تم سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا. اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے گا اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت
فرمائے اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت. بہت خوب. لہذا ماں باپ کی رضا حاصل کیا کرو, ان کی خوشنودی حاصل کیا کرو, ان کی خدمت کیا کرو. اس لیے کہ ماں باپ جب اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اور والدین کے دعاؤں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے, بلکہ ماں باپ کی دعا بارگاہ الہی میں جا کے ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. اگر ماں باپ اولاد کے مال و دولت کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی آل و اولاد کی کمائی میں برکت عطا فرماتا ہے. اگر ماں باپ اولاد کی عمر میں برکت کے لیے دعا کرے تو اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے. خیر و عافیت کے لیے دعائیں کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کے لیے خیر و عافیت پیدا فرماتا ہے. لہذا اے لوگوں, ماں باپ کی ہمیشہ دعا لیا کرو, ان کی بد دعا مت لیا کرو. لیکن مسلمانوں, آج افسوس اس بات پر ہے کہ ایک ماں باپ تو 10 اولاد کو پال لیتے ہیں, لیکن 10 اولاد 10 بیٹے مل کے ایک ماں باپ کو نہیں پال پاتے. تم فلاں کے حصے میں جاؤ, میں نے اتنا مہینہ تجھے رکھا ہے. تم فلاں کے حصے میں جاؤ, میں نے تمہارے اتنا مہینہ پرورش کیا, تمہیں پالا اور پوسا, تمہاری رکھوالی کیا. اے نادان, یاد رکھ, ماں باپ جس کے قسمت میں ہوتا ہے انہی کو ملتے ہیں. اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے, ہما نارکا ہما جنتکا, تمہارے لیے تمہارے ماں باپ جنت بھی ہوا کرتے ہیں اور تمہارے لیے تمہارے ماں باپ جہنم بھی ہوا کرتے ہیں. جب صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جنت بھی کیسے ہو سکتے ہیں اور ہمارے لیے جہنم بھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا, جنہوں نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر لیا, ان کی رضا حاصل کر لیا, ان کو راضی کر لیا, ان کو خوش کر لیا, تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو وہی تمہارے ماں باپ, تمہارے والدین, ہما جنتوں کا, تمہارے لیے جنت بن جاتے ہیں, اور ہما ناروں کا, تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم اس وقت بنتے ہیں جب تم نے انہیں بڑھاپے کی حالت میں پایا, ان کی خدمت نہ کر سکے, ان کو آپ نے یعنی چک کے مار کر گھر سے جدا کیا, گھر سے باہر کر دیا, تو وہی تمہارے والدین ہما ناروں کا, تمہارے لیے جہنم بن جایا کرتے ہیں. اے میرے صحابہ جو تم چاہو اختیار کر لو, چاہو تو جنت حاصل کرو اور چاہو تو جہنم حاصل کر لو. لہذا مسلمانوں, اولاد ہی ایک ہے, ماں باپ ہی ایک ایسی ذات ہے جو اولاد کے لیے جہنم بھی بنتے اور جنت بھی بنتے ہیں. لہذا کم از کم اگر تمہارے والدین دنیا میں ہیں تو ان کی خدمت کیا کرو. لیکن آج افسوس اس بات پر ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہیں لیکن انہیں اولاد الگ چولہا جلانے پر مجبور کر رہے ہیں. منہ سے باہر ہو جاؤ, تم الگ بناؤ کھاؤ. آج کی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک, یہ برتاؤ کر رہے ہیں, اور پھر جب وہ ماں باپ اپنے جوان اولاد کی 2 منٹ بات کرنے کے لیے ترس رہے کہ کاش میرا بچہ جوان آتا, مجھ سے مسکراہٹ کے ساتھ بات کرتا تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا. آج ماں باپ اولاد کی بات یعنی اولاد سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں, لیکن آج کے نوجوان کو یعنی یہ ٹائم وقت نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے 2 منٹ بات کر لے, ان کی خیریت پوچھ لے, ان کی عافیت لے لے. اے میرے ماں باپ, آپ کیسے ہو, تمہارا کیا حال چال ہے؟ آج کے بچے ماں باپ کی حال و احوال پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جب ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہی بیٹا جو ممبئی میں کما رہا تھا, جو سعودی میں رہ رہا تھا, وہ فلائٹ سے ماں باپ کے جنازے میں شرکت کرنے آ رہا ہے. وہی اولاد جب تک ماں باپ یعنی مرض میں مبتلا تھے, بیماری انہیں لاحق تھی, تو انہیں نہ کوئی سیب ملتا تھا, نہ کوئی انار ملا کرتا تھا, نہ اور دیگر کوئی پھل ملا کرتا تھا. لیکن جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہی نوجوان, وہی اولاد اپنے ماں باپ کے نام پہ 10-10 کلو سیب لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں, یعنی پاتیاں اور دیگر طرح کے یعنی احسان ثواب کرواتے ہیں. لہذا اے لوگوں, احسان ثواب کرنے سے پہلے اگر تمہارے ماں باپ جب تک دنیا میں رہے, انہیں آپ حضرات پہلے سیب کھلاؤ, انہیں پہلے انار کھلاؤ, انہیں پہلے آپ دیگر پھل فروٹ کھلاؤ. اگر وہ کھانے کے بعد اگر تمہارے تعلق سے دعا کر دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت تمہاری کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا, اور تم سے تمہارے ماں باپ راضی ہو جائیں گے, اور جس کے والدین راضی ہو جایا کرتے ہیں اس سے نبی پاک راضی ہو جاتے ہیں, جس سے رسول پاک راضی ہو جاتے ہیں اس سے پروردگار عالم راضی ہو جایا کرتا ہے. لہذا مسلمانوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم,
दुनिया में मुझ पे सबसे ज्यादा किसका हक है? आका ने इरशाद फरमाया कि उम्मु का, तेरी माँ का है। फिर साहबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, फिर दुनिया में हमारी ऊपर सबसे ज्यादा किसका हक है? मेरे आका ने फरमाया उम्मु का, तेरी माँ का है। फिर साहबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मुझ पे दुनिया में फिर सबसे ज्यादा किसका हक है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया उम्मु का, तेरी माँ का है। फिर साहबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, फिर हमारे ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा किसका हक है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया अबू का, तेरे बाप का है। पता चला मुसलमानों, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा माँ बाप का हक ना होता तो हुजूर फरमाते तुम्हारे बीवी का है या तुम्हारे बच्चे का है। यानी मेरे आका ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि तुम्हारे ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा हक अगर किसी का है तो तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप का है। ये मेरे आका ने इरशाद फरमाया है। लेकिन आज का नौजवान क्या सोचता है कि हमारे ऊपर तो सबसे ज्यादा हक मेरी बीवी का है, हमारी ऊपर तो सबसे ज्यादा हक हमारे बाल बच्चों का है। यही वजह है कि बीवी और बाल बच्चों के बहकावे में आने के बाद माँ बाप को अपने से जुदा कर देता है। अरे याद रखो, जब तक तुम्हारे अंदर ताकत मौजूद है, जब तक कि तुम्हारे अंदर तंदुरुस्ती है, तुम्हारे बीवी तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है, अगर तुम्हारे अंदर से ताकत चली जाए या तुम्हारे अंदर से कमाने की सलाहियत और अहलियत खत्म हो जाए, तुम्हारी बीवी तुम्हें लात मार कर दूसरे के साथ चली जाएगी। लेकिन माँ बाप की साथ तो वो साथ हुआ करती है कि जब तक औलाद के जिस्म में रूह और जान बाकी है, अगर ये औलाद के आधा यानी जिस्म सड़ जाए, घुल जाए, लेकिन अगर उसके अंदर जान है तो माँ बाप अपने कलेजे से जुदा नहीं कर सकते हैं। माँ बाप अपनी औलाद को अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। लिहाजा ऐ लोगों, जिस तरह तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने पाला है बचपने में, इसी तरह तुम अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पालो। इसलिए कि तुम्हारे माँ बाप ने इसीलिए तुम्हें जवान किया था, इसीलिए तुम्हारी शादी विवाह किया था, ताकि इनकी फैमिली आगे बढ़ेगी तो मेरे बूढ़े होने के बाद मेरे बच्चे मेरे काम आएंगे, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन आज अफसोस इस बात पर है कि आज की औलाद तो माँ बाप की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ऐ लोगों, माँ से मोहब्बत करना मेरे आका की सुन्नत है। आप देखिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने तमाम तर सहाबा के साथ बैठे हुए थे। इतने में खातून आती है, सुभान अल्लाह। एक आने वाली औरत आती है, मेरे आका ने अपने जिस्म अतहर से अपने काली कंबल वाली चादर नीचे रखी और जमीन पर डाल दिया। वो आने वाली खातून आती है, उस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी काली कंबल वाली पर चादर पे वो आने वाली खातून बैठ जाती है। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़ियाफत किया, मेहमान नवाजी किया, बड़ी मुस्कुराहट खंदा पेशानी के साथ तकल्लुम फरमाया, बातचीत किया, बड़े अदब एहतराम के साथ मेरे आका उनके साथ पेश आए। वो जाने वाली खातून जब चली गई तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये आने वाली खातून कौन थी? ये आने वाली औरत कौन है जिनकी आपने बड़ी ज़ियाफत किया है, आपने बड़ी मेहमान नवाजी किया है, आपने उनके साथ बहुत अच्छा उसने सुलूक पेश किया है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबा सुनो, वो आने वाली खातून और कोई औरत नहीं है, कोई आम औरत नहीं है, बल्कि वो मेरी रज़ाई मादाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई माँ का इतना एहतराम और अदब किया करते थे, जिन्होंने हुजूर को पैदा नहीं किया, सिर्फ हुजूर को दूध पिलाया है, तो बच्चे को सिर्फ दूध पिलाए उस माँ को रज़ाई माँ कहा जाता है। और जो माँ बच्चे को पैदा भी करे, जन्म भी दे, उसके बाद दूध भी पिलाए तो उस माँ को हकीकी माँ कहा जाता है। सुभान अल्लाह। जब मेरे आका अपने रज़ाई माँ का इतना एहतराम किया करते थे, तो जो मेरे आका की हकीकी माँ हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा होती तो हुजूर उनका कितना अदब एहतराम करते। लिहाजा लोगों, माँ बाप अगर दुनिया में हैं तो उनको गनीमत समझो, मौका गनीमत समझ के उनकी खिदमत करो। कि अल्लाह की बहुत अजीम दौलत और नेमत है। इनके जाने के बाद हमें और आपको एहसास होता है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या थे। लेकिन आज ना जब तक वो दुनिया में है, ना औलाद उनकी खिदमत करने के लिए तैयार है। मैं सबकी बात नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपने माँ बाप के जब घर पे पहुंचेंगे सबसे पहले अपने माँ के पास बैठेंगे कि माँ तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम्हारी तबीयत कैसी है। आज भी ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और माँ बाप की खैर आफियत लेते हैं, पूछते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी ना अनजार हैं
कि माँ बाप को तो गाली देते हुए नजर आते हैं, माँ बाप को सताते हुए नजर आते, ऐसाएं देते, तकलीफें देते, उनसे बुलंद आवाज में बात करते। लिहाजा लोग कुरान फरमाता है कि अपने माँ बाप से उफ तक ना कहो, उनसे बुलंद आवाज में बात ना करो। ये अल्लाह करीम ने बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया है। लेकिन मुसलमानों, आज जब तक माँ बाप दुनिया में है तो औलाद उनकी दुनिया में खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं तो वहाँ भी बच्चे अपने माँ बाप की कब्र पे जाने के लिए तैयार नहीं है। जिस माँ बाप ने दुनिया में अपनी औलाद के लिए प्रॉपर्टी बनाया है, विरासत में मकान और दुकान छोड़ा है, विरासत में प्रॉपर्टियां छोड़ के गया है अपनी औलाद के जीने और जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन वो जाने वाला जब दुनिया से चला जाता है तो अपने बाप की कब्र पे उनकी औलाद हाजिर देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ऐ नौजवानों, याद रखो, तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, एहसान अजीम है कि उन्होंने तुम्हें पैदा किया है, बड़ी मशक्कत के साथ पाला और पोसा है। लिहाजा वो जब दुनिया से चले जाए तो उनकी कब्र पे अगर हाजिर हो जाया करो और सूरह फातिहा की तिलावत कर दिया करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तुमने अल्लाह की तारीफ व तौसीफ हमदो सना उनकी कब्र पे खड़े होकर इतनी सी कर दिया तो इंशाअल्लाह तबारका व तआला अगर तुम्हारे बाप की कब्र में अल्लाह की तरफ से अज़ाब मुसल्लत किया गया था, अल्लाह की तरफ से अज़ाब दिया जा रहा था, तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्ते सुनो, मेरे भला बंदे की कब्र से मेरे अज़ाब को हटा दो। तो फरिश्ते मौला की बारगाह में इस्तिगासा पेश करेंगे, ऐ मौला आखिर ये मामला क्या है? अभी तेरा हुक्म हुआ था कि मेरे फला बंदे की कब्र में अज़ाब नाज़िल कर दो, मेरे फला बंदे की कब्र में अज़ाब डाल दो। ऐ मौला तेरा हुक्म हो रहा है कि मेरे फला बंदे की कब्र से अज़ाब को हटा दो। परवरदिगार आलम यानी तो फरिश्ते अर्ज करेंगे तो मौला अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ऐ फरिश्तों सुनो, मुझे ये गवारा नहीं है कि जिसका बच्चा मुझे दुनिया में रहमानुर रहीम करीम गफ्फार कह के पुकारे, मैं उनके बाप को या उनके वालिदैन को उनकी कब्र में अज़ाब दो। लिहाजा ऐ फरिश्तों, इसका बच्चा मुझे दुनिया में रहमानुर रहीम कह के पुकार रहा है, सत्तारो गफ्फार कह के पुकार रहा है। लिहाजा इसके बच्चे का पढ़ना होगा और उसकी मग़फ़िरत मेरा करना होगा। एक बच्चा मुझे, इसका बच्चा अगर मुझे दुनिया में रहमान और रहीम कह के पुकारेगा तो उसके बाप की मग़फ़िरत में उसके कब्र में कर दूंगा, यानी उसके बाप की मग़फ़िरत में कर दूंगा, उसके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। ये परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा। लेकिन आज के वालिदैन भी तो अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर प्रोफेसर बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने बच्चे को कुरान की तालीम देने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके मरने के बाद जो तालीम काम आएगी। आज तो लोग अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर मास्टर तो बनाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान नहीं बनाते हैं, आलिम दीन नहीं बनाते हैं, कारी और मुफ्ती नहीं बनाते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों को आप मास्टर इंजीनियर डॉक्टर ना बनाइए, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को आप जरूर कुरान की तालीम दिलवाइए, ताकि आपके दुनिया से जाने के बाद जो तालीम आपके काम आ सके। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बना के गए तो आपका बच्चा दूसरे को कुरान की तालीम देगा, दूसरा तीसरे को कुरान की तालीम देगा, तीसरा चौथे को कुरान की तालीम देगा, चौथा पांचवें को कुरान की तालीम देगा। ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा और तुम्हारे वालिदैन को अल्लाह तबारका व तआला क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। लिहाजा अपने बच्चे को जरूर कुरान की तालीम दिलवाइए ताकि आपके मरने के बाद काम आए। हज़रात, आज हर इंसान जानता है कि दुनिया छोड़ के जाना है, दुनिया से कतई ताल्लुक करना है, दुनिया, इस खूबसूरत दुनिया को अलविदा कहना है, हर इंसान जानता है। लेकिन आज हम और आप जब दुनियावी सफर करते तो रास्ते का कुछ तोशा इकट्ठा करते हैं, रास्ते के खाने पीने के लिए कुछ सामान खरीद कर रखते हैं, ताकि हमारा ये ज़ादे राह है, ये हमारे सफर में काम आएगा। हर इंसान ज़ादे राह इकट्ठा करता है, यानी कुछ रास्ते का साजो सामान लेकर जाता है। लेकिन ऐ लोगों, हमने दुनिया की थोड़ी सी सफर के लिए तोशा तो इकट्ठा कर लिया, ज़ादे राह इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन जिसे दुनिया मौत कहती है, तो सफर बहुत लंबी सफर है। उस सफर के लिए हमने कितनी तैयारी किया है, उस सफर के लिए हमने कितनी नेकियां कमाया है, अपने नेकियों के खजाने में हमने नेकियों का कितना अंबार लगाया है। आज मुसलमानों, नेकियों का मामला आ जाए तो आज हमारा जीरो का जीरो मामला है। आज ना हमें नमाज की पाबंदी करनी है, ना आज हमें ज़कात की पाबंदी करनी है, ना रोजे की पाबंदी करनी है, ना अदो ज़कात करनी है। यानी मुसलमानों, आज का तो मुसलमान गफलत के साथ अपनी पूरी जिंदगी
जिंदगी गुजार रहा है, ऐसा लगता ही नहीं कि इसे मौत आनी है, ऐसा लगता है कि आप हयात पी के आया है, इसको मौत ही नहीं आएगी। ए लोगों, अल्लाह करीम ने बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को पैदा नहीं फरमाया मगर अपनी इबादत के लिए। यानी अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है कि हमने जिन्नातों इंसानों को इसी मकसद के लिए पैदा फरमाया ताकि वो दुनिया में जाकर मेरी इबादत करे, मेरी तस्बीह बयान करे, मेरी तस्बीह तहरीर बयान करे और जिक्र अस्कार करे। अल्लाह तबारका व तआला ने इस मकसद के लिए हमें और आपको पैदा फरमाया है। लेकिन आज का मुआशरा देखें, आज अपना मामला देखें, अपना गिरबान छाप कर देखें तो पता चलता है कि इसके बरअक्स नजर आता है, इसके उल्टा नजर आता है। ऐसा लगता नहीं कि इंसान को दुनिया से छोड़ के जाना है, उस काली कोठरी में जाना है जिसे दुनिया कब्र कहती है, जिस कब्र के ऊपर लोग बैठ के बोलते हैं इस सुराख को भी बंद कर दो, इस सुराख को भी बंद कर दो। लोगों, जब तुम्हारी कब्र के सारे सुराखों को बंद कर दिया जाएगा तो अपनी कब्र में नूर रोशनी कहां से लाओगे, अपनी कब्र में नूर और रोशनी कहां से पैदा करोगे। अगर तुम्हें अपनी कब्र में नूर और रोशनी चाहिए तो तुम्हें नमाज की पाबंदी करनी होगी, तुम्हें रोजे की पाबंदी करनी होगी, हज और ज़कात की पाबंदी करनी होगी। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत लेकर आए उस शरीयत पर अमल करनी होगी तो अल्लाह तबारका व तआला तुम्हारी कब्र में नूर और रोशनी पैदा फरमाएगा। वरना याद रखो मुसलमानों, यानी कि आज नमाजी हमारी कज़ा है। बेनमाजियों के ताल्लुक से जन्नत कहती है, ए बेनमाजी सुन ले, ना मैं तेरे लिए हूँ ना तुम मेरे लिए है। और जहन्नम कहता बेनमाजियों के लिए, ए बेनमाजी सुन ले, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए हूँ। और ए लोगों सुनो, यानी बेनमाजियों के ताल्लुक से फरमाया गया है कि जन्नत में एक जगह गए हैं और गए यानी एक बहुत गहरा कुआं है जिसका नाम हबहब है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, फरमाया गया बेनमाजी को उसी गहरी कुएं में डाल दिया जाएगा और जब उस कुएं की आग यानी उस जहन्नम की आग बुझने वाली होगी तो अल्लाह तबारका व तआला उस कुएं के ढक्कन को खोल देगा, फिर वो जहन्नम की आग उतनी शबाब पे पहुंच जाएगी, फिर उसमें उतनी जलाने की हरारत और सलाहियत पैदा हो जाएगी। यानी इसी तरह अल्लाह तबारका व तआला बेनमाजी को जहन्नम की आग में जलाता रहेगा। ए लोगों, ये बेनमाजियों की सजा है। लेकिन आज हम तो जानते हैं कि मरना है, लेकिन आज अपनी मौत की ना तैयारी है ना तौबा की एक मर्तबा हमें और आपको तौफीक हो पाती है। लिहाजा ए लोगों, अल्लाह ने अगर आपको जिंदगी अता फरमाया है तो अल्लाह की नेमत है। अगर अल्लाह ने आपके जिस्म के सारे आज़ा को सलामत रखा है, अगर तुम्हारे हाथ पे नाक कान को सलामत रखा है, ये तमाम चीजें अल्लाह की नेमत है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके जीने बसर करने के लिए, जिंदगी को गुजारने के लिए आपके लिए सूरज जमीन आसमान पानी और आग को पैदा फरमाया है। लेकिन ए लोगों, अल्लाह तबारका व तआला ने इन तमाम नेमतों को पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ने 5 वक्ता नमाजों को मुकर्रर फरमाया है ताकि जो बंदा मेरी तमाम नेमतों से लुत्फ अंदोज हो, फायदा उठाए, तमाम नेमतों से फायदा हासिल करे और फायदा लेने के बाद जब मुअज्जिन पुकार दे हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, आ नमाज की तरफ, आ कामयाबी की तरफ, आ फलाह बहबूदी की तरफ, जब मुअज्जिन पुकार दे तो जब बंदा अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाता है और अपने सबसे ऊंची जगह पेशानी को जमीन और खाक पे रख देता है और इनके सारी आजिज़ी के साथ ये तराना गुनगुनाता है, सुभान रब्बियल आला व सुभान रब्बियल अज़ीम, ऐ मौला तू ही सबसे आला और अफजल है, ऐ मौला तू बेनियाज है, अल्लाह तू ही सबसे बड़ा है। जब बंदा अल्लाह के हुजूर ये तराना गुनगुनाता है तो अल्लाह तबारका व तआला नमाज के वक्त बंदे से सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। सुभान अल्लाह। फिर बंदा जब रब की तारीफ बयान करता है तो तारीफ बयान करने के बाद जब बंदा यानी कि दुआ के लिए हाथ उठाता है, यही वजह है कि इबादत की दुआ को मक्स कहा गया है। यानी बगैर दुआ यानी नमाज के बाद जो दुआएं मांगी जाती है तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे से ज्यादा करीब होता है और जब अल्लाह करीब हो जाता है, करीब से जितनी ज्यादा मांगोगे अल्लाह तबारका व तआला उतना ही बंदे को अता फरमाएगा। लेकिन आज हमें न नमाज पढ़ने की फुर्सत है, न अपनी मौत को याद करने की फुर्सत है, न आज हमें तौबा इस्तिग़फ़ार करने की फुर्सत है। लोगों याद रखो, अगर अल्लाह ने जिंदगी दिया है तो कम अज कम जब आप सामने अपने बिस्तर पे जाया करो तो अल्लाह के हुजूर
तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया करो, अपने गुनाहों का मुहासबा कर लिया करो कि आज हमने दिन में क्या कमाया, क्या खोया, आज हमने क्या हासिल किया है, मैंने कितने गुनाह किया है, कितना सवाब किया है। लोगों, अल्लाह के हुजूर जब जाया करो तौबा इस्तिग़फ़ार किया करो, इसलिए कि नबी पाक ने इरशाद फरमाया है, तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है, ऐसा साफ़ो शफ़ाफ़ हो जाया करता है जैसे कि बंदे ने गुनाह ही ना किया हो। अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ऐसा लोगों तौबा करने से अल्लाह ताला दिल को नूर कर देता है, दिल के अंदर अल्लाह तबारका व तआला रोशनी पैदा कर देता है। अब तौबा करना ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमाता है, बल्कि तौबा ये खुद अल्लाह की इबादत है। सुभान अल्लाह। अगर बंदा तौबा करता है तो अल्लाह उसके चेहरे पे नूर और दिल में सुरूर पैदा फरमाता है। अगर बंदा अल्लाह के हुजूर तौबा करता है, अल्लाह से नादिम और शर्मिंदा होता है, अल्लाह तबारका व तआला का खौफ अपने दिल में रखता है, नबी पाक की मोहब्बत रखता है, तो अल्लाह करीम उसकी उम्र में बरकत अता फरमाता है, उसकी कमाई और रोजी रोजगार में बरकत अता फरमाता है। लेकिन आज हम बिस्तर पे तो खर्राटे ले लेंगे फजर के वक्त, लेकिन मस्जिद तक नहीं जा पहुंचेंगे, होटलों पे बकवास तो कर लेंगे, लेकिन मस्जिद नहीं आएंगे, फिर ये शिकायत करेंगे यार दुनिया में हमारा कोई नहीं है, आज हम दुनिया में ज़लील व ख़ार हैं, आज दुनिया में हमारा कोई हमारा मददगार और सहारा नहीं है। आज हम अपने घर से मस्जिद तक नहीं जा सकते हैं और ख्वाहिश रखते हैं कब्र से जन्नत जाने की। ऐ लोगों, तुम पहले अपने घर से मस्जिद जाओ, फिर बाद में ख्वाहिश रखो कब्र से जन्नत जाने की। अगर तुम घर से जाकर मस्जिद को आबाद कर लिया तो इंशाअल्लाह तबारका व तआला अल्लाह तुम्हें यह भी मौका अता फरमाएगा कि तुम अपने कब्र से उठ के जन्नत भी जा सको। आज मुसलमानों, आज तो दुनिया हमारी यानी बेइज्जती और नाकामी की मुकद्दर बन चुकी है, आज दुनिया हमारे लिए नाकामी की जगह बन चुकी है। आज यही वजह यही है कि आज अपने अल्लाह उसके रसूल को भुला दिया है, तो अल्लाह उसके रसूल ने हमें भी भुला दिया है। वरना अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, ऐ लोगों तुम मुझे याद करो, तुम मेरा तज़किरा करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। ऐ लोगों मेरी दी हुई नेमतों का शुक्रिया बता लाओ, मेरी दी हुई नेमतों पे मेरी नाशुक्री ना किया करो। जिसने मेरी नेमतों को पाने के बाद मेरी शुक्रिया को बजा लाया, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है बंदे को मैं और अता करूंगा और दूंगा। लिहाजा अल्लाह ने जिंदगी दिया है तो अपनी मौत को याद करो, इसलिए कि मौत के ताल्लुक से बुजुर्गों ने फरमाया है कि फरमाया गया मौत क्या है, फरमाया गया मौत उस चीज का नाम है कि किसी के जिस्म में उसके मुंह के जरिया से कोई कांटेदार टहनी डाली जाए, कांटेदार टहनी डाली जाए और वो टहनी का हर कांटा बंदे के अंदर जाने के बाद हर गोश्त में पेवस्त हो जाए, चुभ जाए, फिर उसके मुंह से कोई ताकतवर इंसान उस टहनी उस लकड़ी को खींचे बाहर करे तो फरमाया गया उसे कितनी तकलीफ होगी। तो फरमाया गया उस बंदे को तो बड़ी तकलीफ होगी, उसको बड़ी एज़ाएं मिलेंगी, उसके बड़ी शिद्दतें के साथ तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो बुजुर्गों ने फरमाया यही मौत है, जो रूह इंसान के जिस्म के हर आज़ा में समाई हुई है, उसके हाथ में भी उसकी जान है, उसके हाथ में उसके पैर में भी उसकी जान है, उसके कान नाक और उसके जिस्म के तमाम आज़ा में उसकी जान और उसकी रूह बसी हुई है। जब फरिश्ते उसकी जान को निकालते हैं तो बंदे को ऐसे तकलीफ हुआ करती है। लिहाजा ऐ लोगों, मौत बड़ी भयानक चीज है, मौत की तैयारी करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह ने जितनी जिंदगी दिया है, जितनी आपकी नमाज़ें कज़ा हो चुकी हैं, उसको आप अदा करो। और जब से आपको वक्त मिल रहा है, आप हज़रात उन नमाजों को कज़ा मत करो, बल्कि उनके मुक़र्ररा वक्तों पे अदा कर लिया करो। अल्लाह तबारका व तआला हमें और आपको अपनी बारगाह में सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, बिलखुसूस नमाज पंजगाना बजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, अपने वालिदैन अपने माँ बाप की खूब खिदमत की तौफीक अता फरमाए। मौला मरहूम आइनुद्दीन साहब की मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाह सगार और कबायर को माफ़ फरमा और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फरमा। उनकी पसमंदगान अज़ीज़ व क़रीब को सब्र जमील वाज़िर जज़ील अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। Ahí está,